آپ نے کون سی پی ٹی آئی کی عورت چھوڑی؟ آپ عورت تو چھوڑے، آپ نے انسان سمجھ کے بھی گرفتاریاں نہیں کی۔ جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھسے، آپ نے بیٹیوں کے جہیز تک چوری کر لیے، آپ کو ذرا خیال نہیں آیا؟ آپ کو اسلام یاد ہی نہیں آیا؟ یہ آج تو آیت نہیں اتر گئی، یہ آج تو میرے دین نے نہیں اچانک سے عورت کو عزت دے دی۔ ہم تاریخ پڑھیں تو خواتین کو تو مقام اور عزت دیا ہی اسلام نے ہے۔ اللہ نے جو مقام دیا، اس سے پہلے عورتوں کا یہ مقام تو نہیں تھا جو اسلام نے دیا ہے۔ آج اچانک سے تو نہیں آ گیا اسلام میں یہ رتبہ خواتین کا۔ ہماری باری آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ کو کیوں نہیں یاد آیا کہ خواتین کا کیا رتبہ ہے؟ ہم خواتین کو کم از کم بخش دیں۔ آپ کو کسی کی باری کوئی عورت کی عزت یاد نہیں آئی؟ ہماری باری آج آپ کو عورت کی عزت یاد آ گئی ہے۔ ہماری باری تو کوئی لا نہیں بنا، کوئی پیکا ایکٹ نہیں بنا، کوئی دوسرا ترمیم نہیں ہوئی۔ باقیوں کے لیے، اپنی فیورٹس کے لیے تو آپ قانون پہ قانون پاس کروا رہے ہیں۔ جیسا کیس آپ چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، اگر آپ عورت ہیں آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ یار حیا کرو۔ آج ہم نہیں ہیں لیکن کل کو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے بیڈ روم میں اس طرح گھس گئے ہیں کہ ان کی شادیوں میں گھس گئے ہیں، آپ ان کو ان کی ذاتی زندگی پہ اس طرح اٹیک کریں کہ آپ نے عدت جیسا کیس بنایا ہے ایک عورت پر، اور اس پہ آپ کو شرم بھی نہیں آئی؟ کوئی عورت کی عزت آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ نے کیا مولویوں کو بٹھا بٹھا کے فتوے کروائے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ کیسے کیسے شو کروائے، آپ نے کیسی کیسی پریس کانفرنسز کروائی صرف اس ایک عورت کو رسوا کرنے کے لیے، اور کسی کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ کیا تماشا لگا اس ملک میں عورت کی عزت کا؟ سب نے دیکھا تو اس کا بھی ایک ری ایکشن آیا نا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ بے شک اپنے گھروں میں فی الحال بیٹھی ہو، لیکن ہے تو غیرت مند نا، ہے تو مسلمان نا، مقام تو عورت کا جانتے ہیں۔ اس کا ری ایکشن لوگوں نے 8 فروری کو دیا۔ جو عورتوں پہ ظلم ہوا، ہماری تو ساری کیمپین ہی چلی ظلم کا بدلہ ووٹ، جو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا وہ لوگوں نے دیکھا نہیں؟ لوگوں نے اس کو برا بولا، اور انہوں نے 8 فروری کو آپ کو بتایا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ نے غلط کیا لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ آپ نے کتنا ظلم کیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے یہ بات کرنے والے عورتوں کی عزت پہ جن کو آج بات کرنی یاد آئی ہے۔ اعظم سواتی کی بیٹی کو آپ نے اس کی ماں کی ویڈیو بھیجی، ایک بیٹی کو آپ نے اس کی ماں کی ویڈیو بھیجی، آپ کدھر سے تب؟ ریحانہ ڈار کے گریبان میں آپ نے ہاتھ ڈالا، اس ماں کو اپنا گریبان کھلا دکھانا پڑا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس کو ریپ کی دھمکی دی، کیا سزا دی آپ نے اس پولیس آفیسر کو؟ کیسرا الہی کے سر سے جس نے چادر کھینچی نومینیشن پیپر چھیننے کے لیے، اس کو کیا آپ نے سزا دی بتائیں؟ عالیہ کو اس کی بیٹیوں کے سامنے اٹھایا، عائشہ کو اس کے بھائیوں کے سامنے اٹھایا، فائزہ جو ایک لائر ہے اس کو آپ نے پیروں سے ہاتھوں سے پکڑ کے لبرٹی کی سڑکوں پہ گھسیٹا، اس کے سارے کپڑے پھاڑے آپ نے، طیبہ کو آپ نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا۔ آپ نے کسی ایک آفیسر کا بتایا کہ آپ نے ان کو کیا سزا دی جنہوں نے خواتین کے ساتھ یہ کیا؟ سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، آپ نے کوئی کنڈیم بھی کیا کہ یہ آپ نے غلط کیا؟ ایک 9 مئی کے بہانے میں آپ لوگوں کے گھروں میں جس طرح گھستے رہے ہیں، جتنی سستی چادر چار دیواری ان 2-2.5 سالوں میں ہوئی ہے اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ میرے لیے اتنی شاکنگ تھی ان کی وہ سٹیٹمنٹ کہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، اور آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جو ہماری جان مال حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ عوام اتنے ٹیکس کا پیسہ آپ بھر رہی ہے کہ ہماری جان اس ملک میں، ہماری عزتیں اس ملک میں محفوظ رہیں۔ عمران خان لیٹر میں اپنی بات تو نہیں کرتا، وہ بات کرتا تو وہ کہتا 26 مئی کو گولی کیوں چلی، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اس کے خواتین کے ساتھ جو ہوا، اس کے جو سیاسی قیدی ہیں وہ تو ان کی بات کرتا ہے۔ آپ کیسے یہ جواب دے سکتے تھے کہ میں وہ لیٹر ہی نہیں پڑھوں گا؟ آپ کون ہو وہ لیٹر نہ پڑھنے والے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر کا تو اپنا ایک پروٹوکول ہے، آپ کو عورتوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے، آپ اس کے ایکس پرائم منسٹر کے طور پہ پڑھ لیں کہ بھی ایک وزیر صاحب کا وزیر اعظم نے لیٹر لکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جی ان کے کیا کنسرن ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، وہ کیا مطلب ان کے مسائل ہیں، حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں بھی، تو ابھی آپ اس میں جواب دیں کہ جی یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اول تو سپہ سالار صاحب ہمارے ملک کے سارے کام ہی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ مطلب بہت ایک قابل انسان ہے، تو وہ ہر جگہ ہر چیز ہی دیکھ رہے ہیں۔ تاجروں سے وہ ملتے ہیں، سرمایہ کاروں سے وہ ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے وہ ملتے ہیں، غیر ملکی دورے وہ کرتے ہیں، باہر سے چندہ وغیرہ یا امداد وغیرہ وہ مانگتے ہیں، جو بھی ہیلپ مانگتے ہیں، بجلی چور وہ پکڑتے ہیں، چلغوزے وہ اگاتے ہیں، پلاٹس وہ بیچتے ہیں۔ ہمیں تو ابھی پتا چلا کہ پتہ نہیں کتنے کاروبار ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو سب کچھ تو کر رہے ہیں۔ آپ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، آپ میں اتنی قابلیت ہے، تو ہم تو آپ کی قابلیت پہ ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے قابل انسان ہیں، تو ایک لیٹر پڑھنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ پڑھ کے آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ خواتین کے ساتھ 2-2.5 سالوں میں ہوا کیا، پیچھے آپ نے کیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاملے میں، آپ اتنے بے بس ہیں، تو آپ بتا دیں کہ بھئی میں اس معاملے میں بے بس ہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے اختیار کرنے والا، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی جواب ہی نہیں آپ کہیں کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں۔ ویسے آپ سارے اپنے کرنے والے کام کر رہے ہیں جو اس باری میں آپ بولیں کہ جی یہ میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، وہ بھی آپ پڑھ لیں، کیا مسئلہ ہے، پڑھ لیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں صنم جوید صاحبہ۔ پاکستان میں 9 اپریل کے بعد جو ہوا، پاکستان میں 9 مئی کے بعد جو ہوا، 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کے بال کھینچے گئے، بچوں کے سامنے خواتین کو پیٹا گیا، گاڑی پہ حملہ کیا گیا۔ 25 مئی کو جب ڈاکٹر یاسمین راشد نکلتی ہیں، کس طرح ان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا، اس کے علاوہ اور بہت سی کہانیاں ہیں۔ تو آج صنم جوید میرے ساتھ موجود ہے، صنم جوید سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز کا عمران خان کے حوالے سے بھی ایک پیغام سامنے آیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی صنم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا صنم، 14.5 ماہ تقریباً آپ نے جیل میں گزارے، آپ بھی ایک خاتون ہیں، تو خواتین کی عزت پہ بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہو آر یو؟ دیکھیں بس بات وہی ہے نا کہ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ مطلب
सब माएँ बहनें बेटियां सांझी हैं, मगर अभी हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे घर की खवातीन है, माएँ बहनें बेटियां हैं, सिर्फ वो काबिल इज्जत हैं। ये तो बहुत पहले से शुरू है। 9 मई तो सिर्फ एक बहाना है। औरतें तो उससे बहुत पहले की टारगेट की हुई थी। हमें तो बहुत पहले से ये लोग कहते थे कि वोकल हैं जी, हर जगह आ जाती हैं, खवातीन क्यों सपोर्ट करती है खान को, ये घरों से क्यों निकलना शुरू हो गई, और ये निकलती हैं तो इनकी वजह से इनकी फैमिलीज निकलती हैं, ये बच्चों को भी साथ लाती हैं। तो हमसे तो बहुत पहले से प्रॉब्लम था। मुझे तो हैरत होती है ये बात करने वाले औरतों की इज्जत पे जिनको आज बात करनी याद आई है। आजम सवाती की बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी, एक बेटी को आपने उसकी माँ की वीडियो भेजी। आप किधर थे तब? रेहाना डार के गिरेबान में आपने हाथ डाला, उस माँ को अपना गिरेबान खुला दिखाना पड़ा कि मेरे साथ क्या किया है। उसको रेप की धमकी दी। क्या सजा दी आपने उस पुलिस ऑफिसर को? कैसरा इलाही के सर से जिसने चादर खींची नॉमिनेशन पेपर छीनने के लिए, उसको क्या आपने सजा दी बताएं? आलिया को उसकी बेटियों के सामने उठाया, आयशा को उसके भाइयों के सामने उठाया, फाइजा जो एक लॉयर है उसको आपने पैरों से हाथों से पकड़ के लिबर्टी की सड़कों पे घसीटा, उसके सारे कपड़े फाड़े आपने। तैयबा को आपने बालों से पकड़ के घसीटा। आपने किसी एक ऑफिसर का बताया कि आपने उनको क्या सजा दी जिन्होंने खवातीन के साथ ये किया? सजा देना तो बहुत दूर की बात है, आपने कोई कंडेम भी किया कि ये आपने गलत किया? एक 9 मई के बहाने में आप लोगों के घरों में जिस तरह घुसते रहे हैं, जितनी सस्ती चादर चार दीवारी इन 2-2.5 सालों में हुई है, इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। फिर जैसे पर्चे आपने खवातीन पे किए, डॉक्टर यास्मीन जो एक कैंसर सर्वाइवर हैं, 74 इयर्स ओल्ड हैं, वो 2 साल होने वाले हैं जेल में हैं, जमानत नहीं हो पा रही, जमानत नहीं देते हैं डर के मारे जजेस। कौन रोक के बैठा है उनकी जमानत? आप तो पहले ये बताएं ना कि कौन है जिसने उनकी जमानत रोकी हुई है। आपको किसी और की माँ बहन बेटी के साथ होती ज्यादतियां नजर नहीं आई। किसी एक बार आपने नहीं सोचा कि यार चलो मर्दों तक ही रह जाते हैं, चलो सिर्फ खवातीन की तरफ नहीं आते। हमारा तो मजहब हमें सिखाता है कि आप कुफार की खवातीन और बच्चों के साथ भी ये सलूक ना करें जो आपने अपने लोगों की अपनी खवातीन के साथ किया। आपको कोई कुरानी आयत याद नहीं आई, आपको अल्लाह याद नहीं आया, कोई डर नहीं आया, कोई मरना नहीं याद आया, खौफ खुदा नहीं आया। आज अचानक से आपको याद आया कि खवातीन को क्या मुकाम दिया है इस्लाम ने। नहीं तो मुझे बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि खवातीन को इस्लाम ने मुकाम दिया है, कौन होता है इज्जत छीनने वाला? मुनीर साहब की तरफ से जो पैगाम है, जो एक वीडियो मैसेज है जिसमें वो तलबा से खिताब कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे साथ तो ये कुछ हुआ है कि आप फरजाना सरवर साहिबा के हस्बैंड की डेथ हो गई, उनको पहले ये कंडीशन दी गई कि आप अपने हस्बैंड का जनाजा इस शहर में भी नहीं करेंगी, आप अपने अबाई लाके लेके जाएंगी, पीटीआई का कोई इसमें शामिल नहीं होगा, तब हम आपको अपने आपके मरे हुए शौहर का चेहरा देखने देंगे। पीटीआई की खवातीन की तो आपने ये तक हालात आपने किए उनके। अभी आप देख लें, ईमान ताहिर साहिबा पे केसेस हैं, उनको भी ढूंढने के लिए रेड घर पे कर रहे थे और उनकी बहन को भी पकड़ के ले गए। जरताज को जैसे आप कोर्ट लेके आए, ना उसके पैरों में चप्पल ना उसके पास दुपट्टा, सिमाबिया को जैसे आपने पकड़ा, उसका दुपट्टा खींचा, बाल खींचे, उसको मारा। आपने कौन सी पीटीआई की औरत छोड़ी? आप औरत तो छोड़े, आपने इंसान समझ के भी गिरफ्तारियां नहीं की। जब आप लोगों के घरों में घुसे, आपने बेटियों के जहेज तक चोरी कर लिए, आपको जरा ख्याल नहीं आया, आपको इस्लाम याद ही नहीं आया। ये आज तो आयत नहीं उतर गई, या आज तो मेरे दीन ने नहीं अचानक से औरत को इज्जत दे दी। हम तारीख पढ़े तो हमारे खवातीन को तो मुकाम और इज्जत दिया ही इस्लाम ने है। अल्लाह ने जो मुकाम दिया, इससे पहले औरतों का ये मुकाम तो नहीं था जो इस्लाम ने दिया है। आज अचानक से तो नहीं आ गया इस्लाम में ये रुतबा खवातीन का। हमारी बारी, आपको आप लोग कहाँ थे? आपको क्यों नहीं याद आया कि खवातीन का क्या रुतबा है? हम खवातीन को कम से कम बख्श दें। नहीं तो आप सनम, जब आपको गुजरांवाला में 5-5 6-6 घंटे प्रिजनर वैन में धूप में खड़ी कर देते थे, तो तब क्या आप खातून नहीं थी? मैं आपको बता रही हूँ कि हमें जो लोग ये कहते हैं ना कि इन्होंने प्रोटोकॉल से जेलें काटी, आप शायद भूल जाते हैं हमने पंजाब में जेलें काटी। हमने उस औरत की ज़ेर अताब जेलें काटी जिसके बारे में सब जानते हैं कि कीना परवर औरत है, जो एक बदला लेने वाली औरत है, जो बुक्स रखने वाली औरत है। वो जितना तंग हमें कर सकती थी हमें करती थी। हम अगर जो आम प्रिजनर्स को भी चीजें सहूलतें मिली होती थी ना, हम मांगते थे तो वो कहते थे, पहले तो वो हमें तंग इतना करते थे, और अगर कोई जज आ जाता था हम उस जज को रिक्वेस्ट करते थे कि जी हमें ये दे दें क्योंकि बाकी खवातीन को मिला हुआ है। तो फिर वो हमें बोलते थे कि जी आप अपने घरों से ये चीजें मंगवा लें, हम आपको नहीं देंगे। आप 8-8 घंटे में प्रिजन वैन में रखते रहे हैं, शहर शहर आपने हम पे केस किए हैं। मतलब मेरे पे बलोचिस्तान तक का केस है। खतीजा को उठा के बलोचिस्तान तक लेकर गए, 5 साल की बच्ची उसकी, रोहिना की 3 साल की बच्ची। आपको किसी की बारी, कोई औरत की इज्जत याद नहीं आई। हमारी बारी, आज आपको औरत की इज्जत याद आ गई है। हमारी बारी तो कोई लॉ नहीं बना, कोई पीका एक्ट नहीं बना, कोई दूसरा तरमीम नहीं हुई। बाकियों के लिए, अपनी फेवरेट्स के लिए तो आप कानून पे कानून पास करवा रहे हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक जेल में हैं, इसके अलावा बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि आप जेल में उन तमाम खवातीन के साथ थी जिन्हें उठाया गया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप खुद जानती होंगी कि खवातीन के साथ क्या होता रहा। तो कुछ ऐसी कोई 1-2 स्टोरी बताएं ताकि पता चले इनको कि ये भी खवातीन है।
जब फरजाना सरवर साहिबा की जमानत हुई तो जब वो उनको छोड़ के गेट पे वापस आई तो जो लेडी वार्डन थी वो लिटरली रो रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जब उनकी बेटी को पता चला, उनके बेटे को और उनकी बेटी को, कि जेल के बाहर फिर से एक बार पुलिस खड़ी हुई है और वो अपनी माँ की जमानत मचल के भर के ही इसलिए आए थे क्योंकि उनका बाप जो था वो आखिरी सांसों पे था। तो उसकी बेटी ने चलती गाड़ी से छलांग लगाई कि मेरी अम्मी को यहीं उतारे जेल के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप जेल के बाहर मेरी अम्मी को ना लेकर जाएं। उसके बेटे ने पुलिस वालों के पांव पकड़े कि आप मेरी माँ को जाने दें, हम सच बोल रहे हैं, हमारा बाप बिस्तर मर्ग पे है। तो वो इतना रो के वार्डन बता रही थी कि इतने जालिम हो गए हैं ये लोग। और फिर उस औरत को लेके पहले अस्पताल गए चेक करने के वाकई उसका शौहर मर रहा है कि नहीं मर रहा। सुमैया की एक बेटी का पहले निकाह टूटा था, दूसरी बेटी का रिश्ता तय था और उन्होंने बोला कि जी हमें आपने पहले तारीख दी हुई थी, हमने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा हुआ है जिन्होंने बाहर से आना है, तो हम इसका वेट नहीं कर सकते। तो सुमैया ने बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी दूसरी बच्ची का मेरा मसला ना हो जाए। उसने बोला मैं जेल में, कोई बात नहीं, आप शादी तय कर दें। वो माँ जेल में थी और बाहर उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई हुई थी। वो तो लकीली शादी से एक दिन पहले उसकी जमानत हुई, वरना वो बाय चांस हुई। वो बच्ची जाके अदालत में इतना रोई, उसने जज को अपना कार्ड शादी का दिया और जज ने कहा या तो आप रो लें या मेरे से बात कर लें। उसने कहा कि मेरी माँ ही मेरी शादी पे नहीं है, क्योंकि जमानत की तारीख पे तारीख पड़ती है। जब भी पुलिस ऑफिसर आता है वो कह देता है हमारे पास चालान ही नहीं है, कॉपियां ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, इसमें मेरी माँ की गलती तो नहीं है अगर ये रिकॉर्ड पेश नहीं करते। तो जज ने उसको जमानत दी कि ये क्या मतलब, एक बेटी की शादी है तो चलो जी जमानत दे देते। अगर वो जज को रहम ना आता, वो खुदा तरसी ना करता, तो वो बंदी जेल में बैठी थी, बाहर बच्ची की शादी होती। लोगों ने ऐसा मुश्किल टाइम देखा है। रोहिना की 3 साल की बच्ची है और उसकी जो बड़ी बच्ची है वो 12 साल की है। वो बड़ी 12 साल की बच्ची अपनी 3 साल की बहन के डायपर चेंज करती थी। 12 साल की बच्ची खुद कितनी बच्ची होती है। इसके अलावा बुशरा बीबी अभी तक अडयाला जेल में कैद है। आप देखिए इद्दत जैसा केस, आप चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर आप औरत हैं आपको कंडेम करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि यार हया करो। आज हम नहीं है लेकिन कल को हम भी हो सकते हैं। आज आप लोगों के बेडरूम में इस तरह घुस गए हैं कि उनकी शादियों में घुस गए हैं, आप उनको उनकी जाती जिंदगी पे इस तरह अटैक करें कि आपने इद्दत जैसा केस बनाया एक औरत पर और उस पर आपको शर्म भी नहीं आई, कोई औरत की इज्जत आपको याद नहीं आई। आपने क्या मौलवियों को बिठा बिठा के फतवे करवाए, आपने टेलीविजन पे कैसे कैसे शो करवाए, आपने कैसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई सिर्फ उस एक औरत को रुसवा करने के लिए, और किसी को खुदा का खौफ नहीं आया। क्या तमाशा लगा इस मुल्क में औरत की इज्जत का, सबने देखा। तो उसका भी एक रिएक्शन आया ना। पाकिस्तानी कौम जो है वो बेशक अपने घरों में फिलहाल बैठी हो, लेकिन है तो गैरतमंद ना, है तो मुसलमान ना, मुकाम तो औरत का जानते हैं। उसका रिएक्शन लोगों ने 8 फरवरी को दिया। जो औरतों पे जुल्म हुआ, हमारी तो सारी कैंपेन ही चली जुल्म का बदला वोट, जो आपने खवातीन के साथ किया, क्या वो लोगों ने देखा नहीं? लोगों ने उसको बुरा बोला और उन्होंने 8 फरवरी को आपको बताया कि आपने ज्यादती की, आपने गलत किया लोगों के साथ, खवातीन के साथ आपने कितना जुल्म किया है। लोगों के 13-13 साल के बच्चे उठाए अपने घरों से, उनको लोगों को उनकी माओ बहनों बेटियों की धमकियां दी। जो पर्देदार जिनकी बीवियां थी, जिनकी कभी शक्ल ही देखी थी बीवियों की किसी ने, आप उनके घरों तक घुस गए। आपने शहरियार अफरीदी की बीवी उठा ली जिसकी कभी किसी ने शक्ल नहीं देखी, आप बुशरा बीबी के पर्दे का मजाक बनवाते रहे। मतलब क्या हो गया हमारे मुल्क को, ये इस्लामी मुल्क था, हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इसको। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सिपा सलार साहब को, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट आई, उसके बाद जो मीडिया पे एकदम हंगामा उठा, जिस तरह लोगों ने सवाल उठाए, जिस तरह लोगों ने वीडियोस डाली, जिसमें आपकी भी एक वीडियो थी जिसमें आप एक प्रिजनर वैन में थी। इसके अलावा और बहुत सी खवातीन की वीडियोस आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आई, रेहाना इम्तियाज डार की आई, सिमाबिया ताहिर की आई, तैयबा राजा की आई, हदीजा शाह की आई, आयशा बुड्ढा की आई, और बहुत सी खवातीन की वीडियोस लोगों ने सामने रखी। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे लिए इतनी शॉकिंग थी उनकी वो स्टेटमेंट कि आप एक इदारे के सरबराह हैं और आप उस इदारे के सरबराह हैं जो हमारी जान माल हिफाजत के जिम्मेदार हैं। आवाम इतने टैक्स का पैसा आप भर रही है कि हमारी जान इस मुल्क में, हमारी इज्जत इस मुल्क में महफूज रहे। इमरान खान लेटर में अपनी बात तो नहीं करता, वो बात करता तो वो कहता 26 मई को गोली क्यों चली, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना ले, उसके खवातीन के साथ जो हुआ, उसके जो सियासी कैदी हैं वो तो इनकी बात करता है। आप कैसे ये जवाब दे सकते थे कि मैं वो लेटर ही नहीं पढ़ूंगा? आप कौन हो वो लेटर ना पढ़ने वाले? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक प्रोटोकॉल है, आपको औरतों की इज्जतों का ख्याल नहीं है, आप उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे पढ़ लें कि भी एक वजीर साहब का वजीर आज़म ने लेटर लिखा है, मैं देखता हूं कि जिनके क्या कंसर्न है, इनको क्या परेशानी है, वो क्या मतलब उनके मसाइल हैं, हल हो सकते हैं कि नहीं भी, तो अभी आप उसमें जवाब दें कि जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अव्वल तो सिपा सलार साहब हमारे मुल्क के सारे काम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत एक काबिल इंसान है, तो वो हर जगह हर चीज ही देख रहे हैं। ताजिरों से वो मिलते हैं, सरमायाकारों से वो मिलते हैं, स्टूडेंट से वो मिलते हैं, गैर मुल्की दौरे वो करते हैं, बाहर से चंदा वगैरह या इमदाद वगैरह वो मांगते हैं, जो भी हेल्प मांगते हैं, बिजली चोर वो पकड़ते हैं, चरगोजे वो उगाते हैं, प्लॉट्स वो बेचते हैं। अभी हमें तो अभी पता चला कि पता नहीं कितने कारोबार हैं जो वो करते हैं। तो सब कुछ तो कर रहे हैं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, आप में इतनी काबिलियत है, तो हम तो आपकी काबिलियत पे ही आपको कह रहे हैं कि आप इतने काबिल इंसान है, तो एक लेटर पढ़ने में आपको क्या मसला है? वो पढ़ के आप वो भी देख लें कि खवातीन के साथ 2-2.5 सालों में हुआ क्या, पीछे आपने किया क्या पीटीआई के साथ। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, आप इतने बेबस हैं, तो आप बता दें कि भाई मैं इस मामले में बेबस हूँ, ये मेरे पास नहीं है इख्तियार करने वाला, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो कोई जवाब ही नहीं, आप कहेंगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। वैसे आप सारे अपने करने वाले काम कर रहे हैं जो इस बारे में आप बोलेंगे कि ये मैं वजीर आज़म को भेज दूंगा, वो भी आप पढ़ लें, क्या मसला है, पढ़ लें।